एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत जतन संस्थान की तरफ से महावारी स्वास्थ्य भारत दर्शन। आज एपिसोड 2 है और आज हमारे साथ और नए साथी जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान से, जो अलग अलग तरीके से नए नए नवाचारों के साथ काम कर रहे हैं। मेरा नाम ओम है, मैं आप सबको नमस्ते बोलता हूं और आज का मैं आपका मॉडरेटर हूं। हिंदी में बात करूंगा, किंतु मेरी टीम आपके साथ बराबर बाइलिंगुअल सारी लैंग्वेजेस के अंदर चैट बॉक्स में टाइप करती रहेगी। तो मैं अपनी टीम से आपका परिचय करवा दूं। आज मेरे साथ स्मृति, लक्ष्मी जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋष्वेन, अमोघ, साथ ही साथ और अंबिका। तो पूरी टीम को बहुत और कविता भी हमें पूरा हेल्प कर रही है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें टेक्निक देंगे आज के इस सेशन के लिए। आप सब हेल्थगी प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी वक्ता स्पीकर्स, आप आपने रजिस्टर किया, आप पढ़ सकते हैं। तो आज बाइल चलेगा, इसमें कन्नड़ा भी आएगी, पर जहां भी आपको भाषा की दिक्कत हो बिल्कुल मत घबराइए, अपना चैट बॉक्स ऑन कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आप दूसरी सभी भाषाओं के अंदर हिंदी, अंग्रेजी और आप हमारा एपिसोड ठीक से चले और बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आए। आपके बहुत स्वाभाविक है बहुत प्रश्न और बहुत सारी स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो, नहीं तो सबसे आखिर में हम आपके सभी प्रश्नों को लेंगे और संबंधित वक्ताओं से उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी मूर्ति जी जुड़ी हुई हैं। आप किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 3 दशक से 30 साल से आप महावारी स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर जो समाज चुप्पी है उसे तोड़ने का काम कर रही हैं। आप जतन संस्थान की को फाउंडर हैं और विकल्प डिजाइन की फाउंडर मेंबर हैं। पेशे से आप डिजाइनर हैं, पर आप विशेष तौर पर सामाजिक विकास के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाते हैं और सीधे हम लक्ष्मी जी के पास आते हैं। लक्ष्मी अंग्रेजी में अपनी बात करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगी। वो जो भी बात कह रही हैं उसका सारा हिंदी ट्रांसलेशन आप चैट बॉक्स में साथ साथ पढ़ पाएंगे। मैं ओवर टू लक्ष्मी जी, प्लीज अपने आप को। Good mid morning to all of you this Saturday of October. We welcome you all to the second episode of Menstrual Health Bharat Darshan. Previously, we had presenters from Bangladesh, we had presenters from Rajasthan, and from Arunachal Pradesh. We were very happy to have Tirap. From Rajasthan, we had NGO Dusra Dashak, and we also had from Jatan Sanstha. One team was and the other team was from the Udaipur, Neemuch Khera, Kachi Basti. Firstly, I would like to say a huge thank you to all the community speakers who joined us, and we thank them for all the hard work that they put in as they worked with us. There were many insights we got. We, our communities, still look at menstruation. We understood who are the people who decide evidence. What is the critical thinking that they are doing in their respective fields. We also learned that there were taboos and restrictions that exist. It was interesting to hear insights from Northeast. What they shared with us was that the fact that they are tribal communities and very menstruation still has a shroud, still has a mystery around it, still has a lot of hesitation. We also learned that the Bordumsa Brahman group and the group in Tirap had worked very hard to put their sanitary pad production units together. Bordumsa Mahila reported that they were particularly very fortunate to have worked closely with the local administration, and that really bore fruit because they connected with schools and were able to distribute cloth pads to all the schoolgirls in their district. All this hard work came useful because the group was called administration to quickly make masks and PPE kits. So that was something that we all can learn from. Be ready to spend when there is when there's an emergency or there is a calamity. For Jatan Sanstha, the webinar learning was it was just
overwhelming. We learned so much from the first episode, and we hope to learn more in the episode 2. So today we bring you episode 2, and please Bharat Darshan. We bring you Karnataka, voices from Karnataka, Madhya Pradesh, Nagaland, Rajasthan, and Delhi. Joining us today along with the Rajsi from Bombay and Kavita from Guwahati, who will be answering chat boxes for this morning. Now, without over to our able moderators as they take you through. Thank you very much for watching in, and I hope you will continue to watch all our episodes because. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी आज तक के लिए। और अब हम जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ हैं, तो चलिए चलते हैं सीधे कर्नाटक के बंगलुरु शहर, जहां से सुखी भाव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी जो होम मेकर हैं, और उनके साथ प्रभा जी जो हमारे साथ एक कम्युनिटी जिन्होंने ये एक रिसर्च करके हमें बताया कि भारत भर में तकरीबन 82% ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही अव्यावहारिक तरीके अपनाती हैं। तो दिलीप पटुवाला जी ने हमें बताया कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे तरीके आज भी उपयोग हो रहे हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए सही नहीं कहे जा सकते। राख, अखबार, मिट्टी, इनका उपयोग भी आज तक होता है। ये सब कुछ हमें दिलीप पटुवाला जी ने बताया। सुखी भावा का बहुत स्पष्ट मिशन है कि महामारी पर जो भी चुप्पी है उस चुप्पी को तोड़ा जाए, और साथ ही साथ में पूरे हिंदुस्तान में महामारी के ऊपर खुलकर बात हो, और जितने भी उत्पाद महामारी को सुलभ और सरल बनाते हैं उन सारे व्यवहारिक उत्पादों का बहुत ही सस्ती दर पर तब तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। हमारे साथ प्रभालता जी जुड़ी हुई हैं, दिव्या जुड़ी हुई हैं। आइए हम सीधे उनके पास चलते हैं। दिव्या और प्रभालता जी आज हमसे कन्नड़ा में बात करेंगी। जो भी साथी हमारे साथ नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि पूरी टेक्निकल टीम आपको साथ के साथ में हिंदी और इंग्लिश में चैट बॉक्स में सारा ट्रांसलेशन शेयर करती रहेंगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिव्यालता जी से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में, दिव्या जी। ಓಕೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ವೈಲೆಟ್ ರಾಣಿ, ಸುಖಿ ಬಾಬಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರ್ಫಿಟ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ದವ್ರು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನೋ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ದಿವ್ಯಾ ಅಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು, ವೈಲೆಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೆಂಗಿ ತೋರ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳದು ಅದೇ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಅವ್ರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. 7 ಇಯರ್ ಮಗು, ಅದು ಹೆಣ್ಮಗು. ಅದು ಯೂರಿನ್ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್, ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ದು. ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್, ಈ ತರ ನಾನು ಹೊರ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ನಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ ಸುಖಿ ಬಾಬಾ ಹಲೋ ಸೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೂನು ನಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರು
ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಅನಿತಾ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಯೂರಿನ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಇಯರ್ ಇಂದ ಆ ತರ ಇದೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ನಾವು ತಿರ್ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ನಮ್ ಫಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ. ಕಳ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅವ್ರ हत्र। थैंक यू वेरी मच दिव्या और प्रभता जी। तो जो साथी पढ़ पा रहे थे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप सभी को के बारे में। जब प्रभता जी और दिव्या बात कर रहे थे, हेलो सखी फोन लाइन की बात कर रहे थे। ये एक मिस्ड कॉल प्रोग्राम है जहां पर कोई भी एडोलेसेंट गर्ल या महिला अगर एक मिस्ड कॉल देती है तो 10 सेकंड के अंदर उनके पास फिर से फोन आता है, और इन फोन के अंदर आपसे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आप उस पर डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। इवन अगर जरूरत है तो गायनेकोलॉजिस्ट की सपोर्ट भी उसमें प्रोवाइड होता है। यह हेल्पलाइन हिंदी और कन्नड़ा दोनों भाषाओं में चलती है। दिव्या ने यहाँ पर अपनी बेटी की स्टोरी हमें साथ में शेयर की और बताया कि जब उन्हें डिस्चार्ज की परेशानी थी तो किस तरह से उन्होंने इस लाइन की मदद ली। हम साथ में स्लाइड्स में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुखी भवा कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों में, विशेष नगर में अपने काम को कर रही है। आइए आप सीधा हम बेंगलुरु से चलते हैं। रेवती जी प्लीज अपने आप को म्यूट करें और अपनी बात कहें, अभी साथी पूरा हिंदुस्तान आपको सुनना चाहता है। रेवती जी। जी मेरा नाम रेवती खांडेकर है और मैं भोपाल की एक छोटी सी स्लम पिपलानी क्षेत्र में रहती हूँ। जो हमारा सुखी भवा है, सुखी भवा संस्था बस हमारे भोपाल में कार्य कर रही है। ये 13-14 महीना हो गया। जब से हमारी सुखी भवा संस्था आई है तब से हमने अपने बस्ती में या हमें बहुत सारी बदलाव देखा है। पहले जो मान्यताएं या भ्रांतियां की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा थी हमारी बस्तियों में। हमने जिन जिन बस्तियों में गए हैं या जिन जिन महिलाओं से बात किए हैं, उन हर एक घर में एक भ्रांतियां, एक मान्यताएं को लेकर चलते थे। लेकिन जब हम सुखी भवा के माध्यम से बस्ती में महिलाओं को जानकारी दिए महामारी स्वच्छता को लेकर के, तो उनमें बहुत सारी बदलाव आए हुए हैं। जैसे कि महामारी को लेकर जो किशोरी लड़कियां होती हैं उनको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो बहुत डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। और जैसे शारीरिक बदलाव को लेकर ही देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारी मतलब डरी हुई या सहमी हुई लड़कियां लगती हैं। तो इस प्रकार की हम बस्ती में देखे गए हैं। और जैसे कि महामारी के समय भी लड़कियों को या महिलाओं को अलग रूम में रखा जाता है, एक छुआछूत के भाव से देखा जाता था। लेकिन अभी जब हम सुखी भवा के माध्यम से हम अपनी बस्ती में बहुत सारे बदलाव दिखे हैं, हम खुद में अपने आप में भी बहुत ही चेंजेस लाए हैं, बहुत सारी बदलाव लेकर आए हैं। जैसे हम अपनी जो महामारी का खून होता था उसको हम बहुत ही गंदा तरीका से या एक अलग नजर से देखते थे, लेकिन सुखी भवा की ट्रेनिंग से या सुखी भवा की मीटिंग से हमने उसको एक सामान्य रूप से देखते हैं। वो कोई गंदा नहीं है, एक सामान्य खून होता है। इस प्रकार से हमने अपने बस्ती में बदलाव देखा है। और जो लड़कियों के साथ में भेदभाव करते थे, किचन में नहीं जाना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, तो उसमें भी बहुत ही बदलाव आए हुए हैं। जो पुराने पूर्वजों ने मान्यताएं या धारणाएं बना के चल रहे थे, उसी धारणाओं पे चल रहे थे। मैं भी चल रही थी उसी धारणाएं पे। मंदिर नहीं जाना, इसको नहीं छूना, अचार नहीं छूना, पापड़ नहीं छूना, ये सब करती थी मैं खुद भी। लेकिन जब सुखी भवा की ट्रेनिंग से हमें पता चला, स्टार्टिंग से जब उन्होंने हमें बताया
की महामारी स्वच्छता के ऊपर सारी जानकारी दी पूरी डिटेल में। तब हमें समझ में आया। बार बार हमारी 4 बार मीटिंग लिया जाता था बस्ती में। 5 से 7 दिन के अंतराल में एक बैठक होती थी, उसमें 10 से 15 महिलाएं होती थी। उस बीच हमें ये सारी बातें बताया जाता था। तो हमने बहुत सारी बदलाव देखा है सर, अपने अंदर भी और अपने बस्ती में भी। और अभी हम ऑनलाइन के थ्रू काम कर रहे हैं सर। हेलो सहेली हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हम महिलाओं को स्वास्थ्य के ऊपर जानकारियां दे रहे हैं। जिसका भी कॉल आती है, जो भी समस्याएं बताते हैं, उन समस्याओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जी सर, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर हम आपसे और बात करेंगे जब आखिरी सत्र होगा प्रश्नोत्तरी का, और कोई भी साथी अगर आपके काम के बारे में जानना चाहें तो जरूर आपसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से भोपाल सुखी भवा का। तो हम सब ने देखा कि किस तरह से सुखी भवा अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नवाचारों के साथ काम कर रही है। साथियों, पीरियड फेलोशिप हम सभी जानते हैं, जो तकरीबन 12 से 13 राज्यों के अंदर सुखी भवा है। और भी अगर आप सुखी भवा के बारे में जानना चाहें तो हेल्सगी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, आप वहां पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब सीधा हम चलते हैं आसाम की वादियों में। गोलाघाट जिले का बोकाखाट एरिया, हम सभी काजीरंगा से परिचित है। नेशनल पार्क काजीरंगा जो कि अपने गेंडे यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसी इलाके का एक हिस्सा जो अपनी प्राकृतिक दृश्यों की वजह से, अपने झरनों की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसी क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हुई है इको हब। इको हब एक सोशल एंटरप्राइजेस है जो कि नागालैंड के दिमापुर के साथ साथ जिन्होंने काम की शुरुआत की बोकाखाट एरिया में। बहुत ही अलग अलग तरीकों का काम कर रही है, जो कि बायोडिग्रेडेबल पैड्स के बनाने के साथ साथ खाह कच्चीकारी का काम, जो कि बंगाल से शुरू हुआ, आज पूर्वोत्तर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, उसके ऊपर भी वहां का काम चल रहा है। और उसके साथ साथ आसाम और वहां के आसपास के जनजातीय क्षेत्रों की जो है उसको सहेजने का काम आज इको हब कर रही है। इको हब पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ नेहा अरोड़ा जुड़ी हुई है इको हब से, सीधे बोकाखाट क्षेत्र से। तो आइए सीधा वहां चलते हैं और नेहा अरोड़ा से जानते हैं कि किस तरह से वो वहां पर इको हब के साथ मिलकर जनजातीय क्षेत्रों में बायोडिग्रेडेबल पैड्स को लेकर काम कर रही है। प्लीज यहाँ को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। नेहा जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्मृति मैम, लक्ष्मी मैम और आपको से आप लोगों ने असम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया है ताकि हम लोग आपको हमारे व्यू पॉइंट और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट, बोकाखाट एक छोटा सा टाउन है जो काजीरंगा नेशनल पार्क, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न डायनासोरस के फेमस है, उसी के पास एक टाउन है। तो फर्स्ट हम लोग बोला, एक लोग सोचते हैं कि असम पे रहना, मान लीजिए सब लोग जंगल में रहते हैं, सोचते ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग के यहाँ पे सब सुविधा है, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी वगैरह सब एक टाउन में होता है, हॉस्पिटल, सब यहाँ पे हम लोग की सुविधाएं हैं। तो मैं बोकाखाट से बोल रही हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट में एक्चुअली इको हब का मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया था, जो सैनिटरी नैपकिन है, तो वैसा मैंने एक यूज किया था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, फिर बोला कि कैसा है बताना, फिर मैंने उसको यूज किया। यूज करने के बाद मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस मतलब मिला कि मान लीजिए जैसे रैशेस वगैरह होते हैं वो सब नहीं हुआ। तो मैंने फिर मेरे फ्रेंड को पूछा कि ऐसा ये कहाँ पे बनाया हुआ है, कैसा है। तो उन्होंने बोला कि ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, जो हमारे बोकाखाट पे बनाया जाता है। तो उसी टाइम पे मेरा इंटर्नशिप का टाइम भी था, तो मैंने यहाँ पे इको हब पे सोशल एंटरप्राइज से मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। फिर मुझे सिलेक्ट किया गया। फिर उसी इंटर्नशिप पे मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ मैंने इंटर्नशिप किया, और उसी इंटर्नशिप के द्वारा मैंने बहुत सारी बातें सीखी, जिससे आपको मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, फिर जो हमारे कुछ लोग की धारणा है कि ये मतलब रसोई पे नहीं जाना या फिर पिकल्स वगैरह छूना, फिर हम लोग के यहाँ पे माना जाता है गार्डन पे जाके फूल वगैरह तोड़ना भी अलाउड नहीं है।
तो वो सब जो मीट है हम लोगों को बहुत सारे खत्म हो गया मेरे तो बहुत, और फिर प्रोडक्ट मुझे भी मालूम हुआ कि मेंस्ट्रुएशन के जैसे जो बहुत सारे प्रोडक्ट है, रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स, सैनिटरी पैड्स, फिर मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पून्स, उसके बारे में भी मुझे पता चला। तो मैंने उसको यूज किया और अभी भी यूज कर रही हूँ जैसे मेरे लिए जैसे कन्वीनियंट है। तो उसी दौरान इंटर्नशिप के दौरान मुझे बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग्स मिले, और फिर ट्रेनिंग के बाद उसके बाद फिर मुझे सिलेक्ट किया गया। फिर उसके बाद हम लोग जगह जगह जाके हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो मिसिंग टी ट्राइब्स वैसे फिर लोकल असमीज पीपल है उन लोगों के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया है। तो हमें कुछ मालूम हुआ कि पहले उन लोग सोचते थे कि मान लीजिए मेंस एक्चुअली एक मतलब जो ब्लड है वो एक पेट से निकल है, लेकिन जब हम लोग ने उन लोगों के साथ बात किया तब उन लोगों को पता चला कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और बहुत सारे उन लोगों के जो धारणा है कि कुकिंग नहीं करना, फिर एक साइड पे हम लोग के यहाँ के लड़कियों को एक ही साइड पे मतलब एक रूम पे एक्स्ट्रा करके रखते थे। ज्यादातर जो लोकल असमीज पीपल है उन लोगों को एक्स्ट्रा करके मान लीजिए नीचे उन लोगों को जो लड़कियां होंगी मेंस उन लोगों को नीचे बिस्तर के नीचे मतलब पक्का पे उन लोगों को सोना पड़ता है। तो वो सब उन लोगों के धारणा को हम लोगों ने चेंज करना चाहा, उन लोगों को बताया कि अगर वैसा कुछ उन लोगों को नीचे सोया दिया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे हम लोगों ने उनको मतलब अवॉइड किया। यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट जब एक लड़की मेंस्ट्रुएशन का हीट करती है यहाँ पे किमोनी बिया बोल के माना जाता है। तो वो लोग फर्स्ट दिन पे पूरा यहाँ पे जो एक नेशनल फेस्टिवल है बिहू, वो लोग बिहू डांस वगैरह करके वो लोग किमोनी बिया को मनाते हैं, जो बहुत धूमधाम से पार्टी करते हैं, बहुत धूमधाम से वो लोग किमोनी बिया को मनाते हैं। तो ये सब मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और यहाँ पे ये सब माना जाता है। तो और यहाँ पे मान लीजिए जो मेल्स वगैरह हैं उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मेल्स तो मेल्स वगैरह को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो मेल्स तो वो लोग बोला जाता है कि अगर मैं आज मेरे पापा से बात कर लेती हूँ तो पापा का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, पाप वगैरह लग जाएगा, वैसा भी माना जाता है। और यहाँ पे असम पे एक टैबू है जो कोई भी बात नहीं करता है इनके बारे में। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है तो डॉक्टर वगैरह पे नहीं दिखाते। ज्यादातर जो पेट दर्द होता है वो माना जाता है कि ये बाद में प्रेगनेंसी पे बहुत प्रॉब्लम देगा। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि पेट दर्द होने से हम लोग किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग ने ट्रेनिंग वगैरह जो स्कूल कॉलेजेस फिर आप लोग जो कम्युनिटी है उन लोगों के साथ जब हम लोगों ने बात किया तो उन लोगों को भी मालूम हुआ कि पेट दर्द एक नॉर्मल बात है, अगर ज्यादा हो गया तब हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने उनको सिखाई और फिर जितना सकते हैं हम लोगों ने चेंज लाना चाहा। और देखा है कि मैंने अभी खुद जो मेरे अंदर एक जो मिथ था वो सब मैं खुद चेंज कर सक रही हूँ। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ, सब लोगों के साथ मैंने शेयर किया और ट्राई कर रही हूँ कि उन लोगों का थोड़ा माइंडसेट पहले बहुत सारा चेंज हो गया, अभी भी थोड़ा और जो रह गया उन लोगों को भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं ताकि उन लोगों को पता चले कि ये एक अछूत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हम लोगों को इसके बारे में जितना सकते हम लोग बात करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। और यकीनी तौर पे ये सिर्फ आसाम की परेशानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत सारे देशों की एक हम कह सकते हैं ग्लोबल समस्या है महामारी पर बात। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से नेहा हमें बताया आपकी टीम इकोहब वहां पर काम कर रही है। जी इकोहब के साथ हम एक चीज पे और साथ में जुड़े कि नेहा ने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की कि पुरुष जुड़ना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते महामारी पे, तो इस पे भी हम सबको साथ मिलकर आगे आना होगा, पुरुषों को जोड़ना होगा क्योंकि पुरुषों को लगता है कि हमारा मसला ही नहीं, तो हम सबका मसला है, हम सबका मुद्दा है, हमें साथ आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। बिहू की आपने बात की और बिहू हर एक मौसम में
हर एक उत्सव पे साथ नाचा जाता है, खेला जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ जुड़ते हैं। तो जब बिहू में महिलाएं और पुरुष साथ जुड़ सकते हैं, तो माहवारी पर बातचीत करने में हम सब साथ क्यों नहीं जुड़ सकते। बहुत ही वैलिड पॉइंट नेहा आपने उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे जब हम आगे बढ़ते हैं आसाम से नागालैंड की तरफ, और जब नागालैंड चले उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोग्राम आप अभी अपने जूम कॉल पर देख पा रहे हैं, अगर आप अपने साथियों को भी इससे जोड़ना चाहें तो YouTube लिंक आपके चैट बॉक्स में है, प्लीज इसे कीजिए, साझा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये उपयोगी जानकारी पहुंचाइए। आज एपिसोड 2 है, अगले शनिवार हम एपिसोड 3 के साथ भी आएंगे। चलिए नागालैंड चलते हैं। नागालैंड और आसाम की बॉर्डर पर एक क्षेत्र है जालुकिया। जालुकिया बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी जनजातियों के अलग अलग पहनावे, अलग अलग रीति रिवाजों की वजह से, और वहां पर हमारे साथ काम करती हैं CLBRC संस्था। वर्ल्ड के सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट से स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें नेदरलैंड साथ में जुड़ा हुआ था, जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र लाइवलीहुड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो सबने साथ काम की शुरुआत की 2018 में। 2019 तक आते आते CLBRC अलग से स्वतंत्र रूप से काम करने लग गई। तकरीबन 14 संस्थाओं की, 14 माफ कीजिए, SAGs का एक फेडरेशन है CLBRC, और जो साथ मिलकर वहां पर काम करती है। हमारे साथ CLBRC से क्रिस्टीना जुड़ी हुई हैं, जिनका मूल नाम है रमजेउ पेउले कामलाग। मैं क्रिस्टीना का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और क्रिस्टीना से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अब बात कहे कि किस तरह से CLBRC वहां पर काम कर रही है। साथियों, क्रिस्टीना हमारे साथ इंग्लिश में बात करेंगी और उसका सारा हिंदी ट्रांसलेशन आप चैट बॉक्स में साथ में पढ़ पाएंगे। क्रिस्टीना, मोस्ट वेलकम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपनी बात करेंगे। क्रिस्टीना। Hello everyone, respected all the organizers, my fellow friends, my fellow speakers, and well-wishers for life. Okay, I'll speak about in my community. Since we are tribal, most of the girls shared our family members about the menstruations. So during our pains, like cramps, like back pains or stomach pain, we share to our family members so that they can help us during our hardship, during our monthly cycle. Also, I should say, like, some of the women openly shared about their menstruation to their family, but some are not that close because they are shy, or so like they were not comfortable, and it depends on individuality. In our community, menstruation are free and normal thing for women to do. We are free to work, go to church, do anything none other than like other tribe, no other religion, I should say. And then in my community, men doesn't discriminate against anything about women's menstruations. But I should say, like, in some rural areas, though men doesn't discriminate anything against women's menstruations, they keep secret out of fear, shy, or say like self-consciousness. I should say, like, this thing happened to most of the teenagers, youngsters. So at that point of time, we start giving awareness program on menstrual health educations, which is like we got training from EcoFem, and then we go schools to schools, colleges to colleges, and also some of the villages, like for the women, to educate them and to share our experience towards this sanitary napkin. Because like we mostly talk about, I'm so sorry for my video. When we sit, we gathered and we discuss, we speak about personal hygiene, like to feel free, to feel comfortable. And if we feel comfortable, because like we can
we can go well during our menstruations. We also give awareness on how to wash, how to dry our used clothes, and how to decompose our used clothes. Lastly, but not the least, I would like to conclude my speech by saying that we are looking forward for another better platform so that we can educate and share our experiences and about our menstrual health educations. Also, we mostly do we the CLBRC mostly do our sales like local sales, and then schools. After the awareness program, we will display our sanitary napkin, and then we will sales on schools, colleges, like villages, and some rural and urban areas. That's all. Thank you. थैंक यू वेरी मच क्रिस्टीना। और साथियों, हम सब ने देखा कि CLBRC किस तरह से न केवल अवेयरनेस से बल्कि साथ क्लॉक पेट्स को लेकर काम कर रही है। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबको बता दूं 14 SHG का ये फेडरेशन बहुत अच्छे से नागालैंड में काम कर रहा है। आपने एक चीज देखी कि पूर्वोत्तर हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो या मध्य प्रदेश, नहीं करना चाहता महावारी के ऊपर। कैसे शुरुआत की जाए बात की, कैसे शुरू हो कि लोग इसके ऊपर बात करें और ये इस चीज को तय कर ले कि ये कोई नहीं है इस पे बात। अगर हम सब बात करेंगे तो जितने भी टैबू हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो हम खत्म कर सकते हैं। तो कैसे बात की शुरुआत हुई और कैसे जतन ने अपने काम की शुरुआत की, तो आइए चलिए सीधे नागालैंड से आ जाते हैं उदयपुर। और उदयपुर हमारी अपनी संस्था, हमारी टीम के हम सीधे रेल मगरा चलते हैं। रेल मगरा साथियों उदयपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक सेमी अर्बन एरिया है। ये फेमस है अपनी जिंक की खदानों, फेमस है एक बराबर डिस्टेंस पे मेवाड़ रीजनल एरिया है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में आने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारे साथ भारती और श्यामा जुड़ी हुई हैं। भारती लगभग 2012 से हमारे साथ जुड़ी हैं और एक एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़कर काम कर रही हैं। भारती उगेर के साथ जुड़ने के साथ साथ प्लस ट्रस्ट फेलो रही हैं और न केवल उगेर पैड्स का निर्माण बल्कि भारती साथ साथ में अपने आसपास की किशोरियों के साथ, अपने आसपास की महिलाओं के साथ भी काम करती है। साथ में श्यामा जुड़ी हुई है जो सीधे तौर पर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ काम करते हुए, महिला जनप्रतिनिधियों को जिन्हें हम सरपंच वार्ड पंच कहते हैं, उनके साथ काम करते हुए किस तरह से माहवारी को एक सर्वसुलभ विषय बनाया जाए उस पर बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी आदतों का। तो आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहले फोटोग्राफ में, इस पे फ्लीस का कपड़ा है जिसे हम आमतौर पर हमारी यहाँ की महिलाएं टाइम पीस कहती है। साथियों ये नॉन वूवन फ्लीस का कपड़ा है, इससे कतई भी हम सूती या सामान्य कपड़ा नहीं कह सकते। एक तरह का पॉलीएक्रिलिक फाइबर है जो जल्दी से सूख जाता है और इतने गहरे रंग का होता है कि इसमें माहवारी का खून दिखाई नहीं देता, इसलिए आमतौर पर महिलाएं इसे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो जब कर्नाटका और राजस्थान के अंदर लक्ष्मी मूर्ति अपना स्टडी कर रही थी, जिसे हम उस स्टडी के दरमियान उन्होंने ट्रायल के दौरान इन दोनों को साथ में टाइम पीस के साथ साथ जो उगेर पैड डेवलप हुआ है इनको लेकर ट्रायल किया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी के दौरान, और ये पाया कि जो टाइम पीस कपड़ा है वो असहज है, रैशेज होते हैं और काफी गर्म प्रकार का कपड़ा है, जबकि सूती कपड़े से बना हुआ उगेर पैड सहज है, नर्म है, सामान्य है और उपयोग के लिए बहुत ही सहज है। तो एक स्टडी के दरमियान बाहर निकल कर आया। तो आइए सीधे हम चलते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। मैं रेलमंगरा पंचायत राजसमंद और राजस्थान में रहती हूँ। मैं जब से उगेर शुरू हुआ था 2012 में, उसी टाइम से मैं उगेर से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को 8 साल हो गए उगेर में काम करते हुए। और हमने 20 महिलाओं ने हमें उगेर में काम किया था और हमें सभी महिला को 2-2 उगेर पैड मिले थे, टाइल्स मिले थे। और
मैंने खुद ने उगेर पैड यूज किया और देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये सूती कपड़े का है, और मैं खुद टाइम पे यूज करती थी। और मेरे से उसी में से मेरे को खुजली होना, काफी ऐसी बीमारियां थी जो मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने उगेर पैड यूज करने के बाद मेरे को ये लगा कि सूती कपड़ा है, अच्छा है, धोने में भी अच्छा है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद अपने मोहल्ले की और गांव की औरतों को बताऊं कि वो खुद टाइम पीरियड यूज नहीं करे और उगेर के ही पैड यूज करे। तो फिर मैंने ये सोचकर अपनी मोहल्ले के 20-25 महिलाओं को उगेर बना के खरीद के मैंने उनको दिया। और उन महिलाओं ने कहा कि हम तो पीरियड टाइम यूज करते हैं, ये सूती यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि धोने में दिक्कत आती है। तो फिर मैंने कहा कि मैं खुद यूज कर रही हूँ, आप भी यूज करके देखें। तो काफी महिलाओं ने यूज किया और 3-4 महीने के बाद रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। और सभी महिलाओं ने मेरे को कहा कि भारती जी बहुत अच्छा है, इससे हमें नाचने कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। उससे मेरे को लगा कि उगेर पेड़ को हमें ज्यादा से ज्यादा महिला के पास पहुंचाना चाहिए। तो मैंने 4-5 पेड़ लेकर अपने रिश्तेदार में गिफ्ट किया कि आप भी आगे से आगे उगेर के बारे में कुछ कहो। तो उन्होंने भी यूज किया और 4-5 महीने बाद रिजल्ट बताया, उनको भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैं उगेर पेड़ को लेकर मैं खुद काम करती हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है। मैं सिलाई करती हूँ, कसीदा भी निकालती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उगेर पेड़ यूज करें, टाइम पेड़ नहीं यूज करें। और अच्छा उगेर पेड़ ही है। धोने में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है, पर मेरे को ऐसा नहीं लगा कि पानी ज्यादा खत्म हो रहा है या साबुन ज्यादा खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खुली धूप में अपन सुखा सकते हैं, अपना खुद का पेड़ है, अपन को कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अपन खुले में कैसे सुखावे। काफी महिलाएं डरती हैं कि पेड़ को खुले में सुखाना अच्छी बात नहीं है, शर्म आती है। गांव में अभी तक भी वो है कि कपड़े के नीचे डाल के सुखाती है और कीटाणु भी खत्म नहीं होता है। इसे खुले में सुखाने से कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और अपने कपड़ों की तरह रखो उनको, ऐसा नहीं, गंदा नहीं है ये, गंदा शब्द नहीं है। काफी जगह कहते हैं कि ये गंदा है, अपना खून है, अपन साफ कर सकते हैं, क्यों नहीं साफ कर सकते हैं। तो मैंने इस पे लेकर बहुत काम किया और सब महिलाओं को बताया। और मेरी 20-25 महिला की टीम है और आगे से आगे महिला ये जानना चाहती है कि उगेर पेड़ ही यूज करे, पीरियड टाइम वाला यूज नहीं करे। और मैंने प्लस फेलो में काम किया। मैं उदयपुर 5 दिन के लिए ट्रेनिंग में गई और मेरे को वहां भी उगेर पेड़ के बारे में ही सिखाया। और उगेर पेड़ कैसे बनाते हैं, कैसे यूज लेते हैं और कैसे महिला को बताना चाहिए, धोना सुखाना, ये सब मेरे को 5 दिन में वही उगेर पेड़ के बारे में ही बताया था। और मैंने वहां सीखने के आने के बाद मैंने काफी महिलाओं को घर जा जाके उगेर पेड़ के बारे में ही बताया कि आप उगेर पेड़ ही यूज करो। और मैंने 6 महीने शिक्षा पे काम किया था। शिक्षा के ऊपर भी मैंने काफी महिलाओं को जोड़ा और काफी महिलाओं को मेरे घर पे सेंटर चलाया और काफी महिलाओं को मैंने जोड़ कर उगेर और शिक्षा के ऊपर, दोनों के ऊपर काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया भारती, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से आप स्वयं और किस तरह से साथ साथ में आप वहां की स्थानीय महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं। साथियों, भारती की एक चीज मैं आप सबको जरूर बताना चाहूंगा। जब काम की शुरुआत हुई तो जिस तरह से सैनिटरी नैपकिन, जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन है, वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। भारती ने इस चीज को पाया कि किस तरह से उगेर पैड्स को सहज बनाया जाए। तो गांव के अंदर जो टोकरा लेकर कॉस्मेटिक उत्पादों को बेचने के लिए महिलाएं बाहर निकलती हैं, भारती ने उनसे कांटेक्ट किया और उनके टोकरे में, उनके सामान में उगेर पैड्स को भी रखवाया और इसी के साथ गांव गांव में उगेर सिद्ध होता चला गया। आप कोई भी साथी जो उगेर पैड्स के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, प्लीज आप जस्ट हैशगीक पर जाएं, वहां आप उगेर के बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे। आप यूट्यूब पर और गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, आपको उगेर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, आइए अब हम चलते हैं रेल मगरा से गुंदा। उदयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये इलाका अरावली की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है।
महाराणा प्रताप जिनसे हम सभी परिचित हैं, उनकी राजतिलक स्थली के रूप में फेमस हमारा गोगुंदा क्षेत्र पूरी तरह से जनजातीय क्षेत्र है। एससी और एसटी कम्युनिटी की आबादी तकरीबन 70-75% है। यहाँ के भी ज्यादातर लोग बाहर जाकर काम करते हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र में खाना पकाने का काम और कबाड़ का काम से जुड़े हुए लोग हैं। महिलाएं घर पर अकेली रहती हैं और जतन संस्थान यहाँ पर पिछले काफी लंबे समय से साथ में किशोरियों के साथ और महिलाओं के साथ विशेष तौर पर काम कर रहा है। गोगुंदा अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि आज भी तो प्राचीन प्रणाली है जमीन से पानी निकालने की, रहट, वो भी आज गोगुंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज भी उपयोग होती है। केवल रहट ही नहीं, ये चित्र के पीछे हमारा उद्देश्य है किस तरह से गोगुंदा अभी भी मजबूत जड़ों के साथ प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अपने गणगौर के मेले को लेकर ये बहुत फेमस रहा है, जहां पर किशोरियां आती हैं और अपने मुद्दों के ऊपर बात करती हैं। यहाँ जब हम किशोरियों की बात करें तो किलोर प्रोजेक्ट के थ्रू यूएनएफपी के साथ मिलकर जतन ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर ग्रामीण किशोरियों के साथ काम किया है। ग्रामीण किशोरियों के साथ जीवन कौशल शिक्षा के साथ साथ महावारी प्रबंधन, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स और साथ ही साथ उनके साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बहुत लंबे समय तक काम हुआ है। इसी कामों में हमारे साथ 2 किशोरियां जुड़ी रही, तारा और खुशी। हम तारा और खुशी हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने दोनों हमारी बहनें जो हैं वो अपने किशोरी समूह अपने गांव में चलाती है और तकरीबन 24 किशोरियां उनके साथ इस समय उनके गांव की जुड़ी हुई हैं। लाइफ स्किल एजुकेशन पर अपनी जानकारी को बढ़ा रही है। हम चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर, माहवारी प्रबंधन के ऊपर अपनी जानकारी को किशोरियों के साथ बांटती है। तो आइए हम सीधे तारा और खुशी के पास चलते हैं। गोगुंदा में हम जुड़ते हैं उनके युवा क्लब के साथ। मैं हमारी टीम से, गोगुंदा टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करे और अपनी बात को कहे। चलिए सीधे गोगुंदा। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है और मैं जतन संस्थान में उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक में काम करती हूँ। यहाँ पर हम किशोरों के यौन और स्वास्थ्य के मुद्दे के ऊपर काम कर 2 साथी हैं जो आपको महामारी से जुड़े बातें और उनमें फैली भ्रांतियों को लेकर बात करेंगे और उसके कल्चर के बारे में बात करेंगे। खुशी और तारा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम खुशी है। मैं राजस्थान के उदयपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर गोगुंदा में रहती हूँ। गोगुंदा में अनेक जातियां हैं, जैसे भील, गमेती, मेघवाल। गोगुंदा इतिहास में भी प्रसिद्ध है। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। गोगुंदा में गणगौर मेला भरा जाता है। उस मेले में गरासिया जाति के लोग शादी करते हैं। मैं जतन से पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने जतन के द्वारा माहवारी पर ट्रेनिंग ली है, जिसमें मुझे पता चलता है कि माहवारी क्यों आती है, क्या होती है, और यह हमारी ताकत है, ना कि कमजोरी। माहवारी में हमें उगेर पैड बनाना भी सिखाया। इस ट्रेनिंग में 25 किशोरियां जुड़ी हुई है। उस समूह में हम स्वास्थ्य व माहवारी से लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसमें हम किशोरियों को उगेर पेड़ बनाना भी सिखाते हैं। मेरे साथ मेरी साथी तारा जुड़ी हुई है। वो आपको गांव और माहवारी के बारे में कुछ जानकारी देगी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम तारा मेघवाल है। मैं गोगुंदा गांव के कुछ पास में एक गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में बहुत सारी खेती और लोग खेती और पशुपालन का कार्य करते हैं। हमारे गांव में लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। और आज मैं पिछले 3 साल से जतन संस्थान में जुड़ी हुई, जो आज मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ। पहले कुछ बोल नहीं पाते थे। तो हमारे और माहवारी के बारे में हमारे गांव में कोई कुछ भी नहीं बताता है, बहुत शर्म की बात समझते हैं इसको। और जब से हम जतन संस्थान से जुड़े हैं, हमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म नहीं आती। हम सबसे खुले में बात कर सकते हैं और हमें उगेर पेड़ के बारे में इसमें बताया जतन संस्थान ने, जो हम अभी वो यूज करते हैं। और पहले हम बाजार से खरीदते थे, अब उसमें बहुत पैसे भी लगते हैं और हमें परेशानी भी होती है। जो हम उगेर पेड़ हम घर पे बनाते हैं और हमारे मीटिंग करते हैं किशोरियों की, उसमें हम इसके बारे में बात भी करते हैं, सबसे खुल के बात करते हैं। उगेर पेड़ को ही अभी हम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत आसानी से हम हमारे
आसानी से यूज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती इससे। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी है, हमारे गांव में बहुत सारे लोग इसको गलत चीज मानते हैं, जो हम अब जतन संस्थान जुड़ने के बाद इसको इतना गलत नहीं समझते। और यह एक अच्छा खून है, गंदा खून है। हम यहाँ पे घर पे सब सारा काम कर लेते हैं। पहले ये बता देते हैं कि पापड़ अचार कुछ किसी को छूना नहीं, घर का कोई काम नहीं करना, रसोई में नहीं जाना। अब ऐसा कुछ नहीं है, सबसे हम और इसके आगे कुछ जानकारी के लिए हमारी खुशी दीदी बताएंगे। अगर हम भ्रांतियों की बात करें तो हमारे गांव में फैली हुई भ्रांतियां, मंदिर में नहीं जाना, अचार को हाथ नहीं लगाना, पापड़ नहीं बनाना, अलग बिस्तर, बर्तनों को छूना नहीं, परिवार वालों के साथ एक साथ बैठ नहीं सकते, सबसे अलग रहना। लेकिन जब से हमने माहवारी की ट्रेनिंग ली है तब हमने जाना है कि ये कुछ नहीं होता है। हमने मंदिर में जाना स्टार्ट तो नहीं किया है, लेकिन हमने समझा है कि हम अचार को भी हाथ लगा देते हैं, पापड़ भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हम परिवार वालों के साथ एक ही बिस्तर पर बैठ के बात करते हैं। हमने माहवारी के बारे में बहुत कुछ जाना और हमने ये भी जाना कि माहवारी का खून गंदा नहीं होता। अगर वो खून गंदा होता है तो हम सब भी गंदे हैं। तो हमने जतन द्वारा माहवारी ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा जो हमें पता नहीं था, और हमने इसमें ये जाना कि माहवारी हमारी ताकत है, ना कि कमजोरी। और जो भ्रांतियां शुरुआत में चली आ रही थी हमारे गांव में, हमने सबको लोगों को बताया और हमें बहुत शर्म आती थी पहले किसी को बताने से, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम सबको खुल के बता सकते हैं। और हम सबसे ये कह भी सकते हैं कि ये जो भ्रांतियां चली आ रही है वो गलत है। और माहवारी का खून गंदा नहीं होता है, वो अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो खून गंदा है तो हम सब भी गंदे हैं। तो दोस्तों, निजामुद्दीन बस्ती की जहां तक बात की जाए तो ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और साउथ दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली के बिल्कुल हार्ट में, बिल्कुल बीच में बसा हुआ हिस्सा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की वजह से ये बहुत फेमस है। 13वीं शताब्दी के जाने माने सूफी संत थे। हम सभी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कई बार उतरे होंगे, पर शायद बस्ती की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। आइए देखते हैं बस्ती के नजारे। स्लाइड पे देख पा रहे हैं तो आप सेहतनामा एक हमारा एक रिसोर्स मटेरियल है जिसे जतन द्वारा डिजाइन किया गया था, खास तौर पर निजामुद्दीन बस्ती में काम करने हमारी हेल्थ वर्कर्स और सेहत आप। तो आप दोनों ही साइड्स में आप देख पाएंगे किस तरह से वहां पर रिसोर्स मटेरियल को लेकर, जो कि लक्ष्मी मूर्ति जी और कैलाश जी बिजवासी जी की तरफ से खास तौर पर आकांक्षा सांस्कृतिक ट्रस्ट के लिए डिजाइन किया गया था। तो बिल्कुल आप देरी नहीं करते हैं और हम सीधा पहुंचते हैं हमारी साथियों मोहतरमा शाहजहां अंसारी और मोहतरमा मेहरुन्निसा के पास, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से आप आगा खां सांस्कृतिक ट्रस्ट के साथ जुड़कर वहाँ सेहत आपा बनते हुए पिछले 30 सालों से वहाँ की बस्ती की महिलाओं के साथ काम कर रही हैं। मेहरुन्निसा जी और शाहजहां अंसारी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरुन्निसा है और मैं पिछले 8.5 सालों से आगा खान फाउंडेशन में एज अ सीनियर हेल्थ वर्कर काम कर रही हूँ। और हमारे साथ हमारी 50 महिलाओं की टीम है जो स्वास्थ्य इश्यूज पर काम करती हैं। हमारा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे एनसीडी प्रोग्राम, डिसेबिलिटी प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्राम और पेरेंटिंग प्रोग्राम। और इन प्रोग्राम्स को हम कैसे करते हैं, हमने इसमें कैसे चेंजेस लाए और इनसे बस्ती वालों को क्या क्या फायदा हुआ, वो आपको शाहजहां जी बताएंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजहां है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो महावारी पर है। और जब महावारी का जो टॉपिक, महावारी पे टॉपिक है, और जैसे कि जब हम इस संस्था से जुड़े तो हमें काफी सारी ट्रेनिंगें दी गई। जब ट्रेनिंगें दी जा रही थी तो उसमें एक टॉपिक आया महावारी का। जब महावारी का टॉपिक आया तो हमारी ट्रेनिंग हॉल में हमारी और भी महिलाएं थी जिनको ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगा और बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। और उस शर्म की वजह से हम खामोशी हो गई और खामोश होकर एकदम सन्नाटा छा गया। तो मैम ने पूछा, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमें से एक महिला ने बोला कि मैम अगर हम खुलकर बात कर रही है महावारी पे तो क्या ये जो जेल से बाहर जा सकते हैं, तो हम इस पर बात कर सकते हैं खुलकर। तो मैम ने बोला ठीक है। तब फिर मैम ने पूछा कि अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग महावारी को क्या समझते हो, आपकी क्या सोच है और क्या धारणा है आप लोगों की, क्योंकि आप बस्ती में रहते हो और मुस्लिम कम्युनिटी से हो। तो हम लोगों ने एक एक करके बताना शुरू करा, क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं और जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया वही चीज हम उसे करते हुए आ रहे हैं। तो हमें बोला
कि जो माहवारी का खून होता है वो गंदा होता है। जो माहवारी में हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो कोई सा भी कपड़ा हमें मिलता था, हम उसे इस्तेमाल कर लेते थे और जब तक नहीं फेंकते थे जब तक पूरा गंदा नहीं हो जाता था। उसके बाद जो माहवारी में खाना नहीं चाहिए, भेदभाव करते थे, हमें अलग से बिस्तर दिया करते थे कि अलग से आपको सोना है, और क्या कहते हैं स्कूल नहीं जाने दिया करते थे कि स्कूल अगर माहवारी आई तो आपको स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है, और अचार नहीं छू सकते, अचार नहीं खाना है, ठंडा नहीं खा सकते, बिल्कुल नहाना नहीं है, अगर आप नहाओगे तो आपके योनि में पानी चला जाएगा। तो ये सारी धारणाएं हम लोगों को मिली गई थी, तो हम लोग इसी को फॉलो करके आ रहे थे। जब हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया तो हमने देखा कि ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन जो हम करते हुए आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, हमारे को इन्फेक्शन लगने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जब हमें बताया गया क्या सही है और क्या चीजें हमें करनी चाहिए महामारी के दौरान, तो वो सिखाई हमें। जब हम ये ट्रेनिंग ली तो हमने सोचा कि पहले हम अपने आप को चेंज कर दें, क्योंकि अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला और हम कम्युनिटी में जाके काम कर रहे हैं और उन लोग समझा रहे तो हम क्या समझा पाएंगे, क्या समझा पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो हमें जैसे ट्रेनिंग के बाद जब हमें महामारी आई तो हमने इन चीजों पे ध्यान रखा कि जो हमें महामारी का जो हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो हल्के रंग का ले और कॉटन सूती ले, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें धोना है, अच्छे से धूप लगाना है। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो उसको गर्म पानी में धोकर इस्तेमाल करना है। और महामारी का खून गंदा नहीं होता, अगर महामारी का खून गंदा होता तो हम भी गंदे होते। और जो बिस्तर जो भेदभाव होता था हमारे साथ, हमने वो भी चीजें बंद कर दी, क्योंकि हम सब चीजें करना शुरू कर दिए, स्कूल जाना शुरू कर दिया बच्चियों ने, तो इससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो अचार और खाने पे टोक था तो वो भी खाना शुरू करा, उससे कोई नुकसान ही नहीं हुआ, ना अचार खराब हुआ। और उसके बाद उन्होंने हमें नहाने के लिए जो बोला था कि नहाना नहीं है, जब हम सोचिए हम 6 दिन नहीं नहाते तो ऐसा लगता था कितना भारीपन लगता था। जब हमने महामारी में नहाना शुरू करा तो बहुत अच्छा लगा, ऐसी फीलिंग आती थी कि ऐसे 6 दिन पता ही नहीं चलते थे। नहीं तो लगता था जब हर महीना आता था लगता 6 साल से हम लोग वही कपड़ा वही पहनती है और वही इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी गंदगी में हम लोग रहते थे। तो वो चीजें करी तो काफी अच्छा लगा। और जो पैड हम लगा के रखते थे, रात दिन लगा के रखते थे, उसमें इतनी गंदगी हो जाती थी, तो उसके लिए समझाया गया था कि 4 से 6 घंटे में आपको पैड बदलना ही है। अगर हम पैड नहीं बदलेंगे तो हमारे में ज्यादा इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो वो भी पैड चेंज किया। अब आई फेंकने की बारी, तो हम पहले खुले में फेंक दिया करते थे, तो खुले में ना फेंक कर जो हमारे पास वेस्ट कागज होते हैं, जो बच्चों की कॉपियां भर जाती है या कोई पेपर है, न्यूज पेपर है पुराना, तो उसमें हमें लिफाफा बनाना सिखाया था ट्रेनिंग में मैम ने, तो उसका हमने इस्तेमाल किया और उसके अंदर हमने पैड डाला और फिर हमने उसको डस्टबिन में डाला, जिससे कि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी सोच हमने अपने आप को बदलाव में लेकर आए। फिर हम समुदाय में गए काम करने के लिए, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है मुस्लिम फैमिली है और वहाँ पर महामारी का नाम लेते ही बहुत बुरा मानते हैं, समझते हैं, और लोग बात करने को तैयार नहीं होते। क्योंकि जब हमारी सोच ऐसी थी तो जब हमें चेंज करने में इतना टाइम लगा तो उनके साथ भी लगा, लेकिन धीरे धीरे जब उनके फायदे बताए और नुकसान बताया तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। फिर उसके बाद हमें एक महिला का केस बताना चाहूंगी, जो हमें एक महिला मिली और उन्होंने हमें बताया कि महामारी में मैं बिल्कुल नहीं नहाती थी और 6-6 दिन तक जो पैड हम लगाते थे, कपड़ा इस्तेमाल करती थी, कोई सा भी कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से और पूरा रात दिन लगाने की वजह, कभी कभी वो बोल रही थी 2 दिन भी लगा रही थी, तो उसके वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन इतना हो गया, वो डॉक्टर के पास गई और जब डॉक्टर ने उनको देखा तो डॉक्टर ने बोला कि आपका इन्फेक्शन तो बहुत ज्यादा हो गया, आपको यूट्रिस रिमूव करानी पड़ेगी। अगर हम महामारी में सही से ध्यान रखेंगे तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। अब हमारा है एक पेरेंटिंग प्रोग्राम, जो सबसे विशेष प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने अब तक 700 महिलाओं को अवेयर किया है। हम ऐसा माहौल देते हैं महिलाओं को जिसमें वो आकर अपनी बातों को खुलकर रख सकती हैं। इसके अंदर हम क्या चीजें सिखाते हैं, लाइफ स्किल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताते हैं। इसमें जो हमारे टॉपिक है वो 11 है, जैसे महामारी, प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग आदि। तो मैं केस बताना चाहूंगी इसी से रिलेटेड, जो हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं और हम ये सारा जो चीजें हम करते हैं हमारे सेहतनामा है। तो जो एक केस बताना चाहूंगी जिससे उस महिला को फायदा हुआ। एक महिला थी जिन्हें थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया की वजह से उनका 4 बार मिसकैरेज हो चुका था और उनके हस्बैंड को भी थैलेसीमिया था और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब उनका 5वां बेबी कंसीव हुआ
और जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो फौरन डॉक्टर के पास गई, ओपीडी में दिखाया हमारी पॉलीक्लिनिक में। उसके बाद उन्होंने सारे चेकअप टेस्ट कराए और बड़े अस्पताल एम्स में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसकी वजह से जब उनकी डिलीवरी का समय आया तो उनका बच्चा जो हुआ ना वो स्वस्थ पैदा हुआ और माँ भी स्वस्थ थी। आज वो बच्चा 6 साल का है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे इस प्रोग्राम से काफी महिलाओं को फायदा हो रहा है। उसके बाद एडोलसेंस प्रोग्राम की डिमांड आई उन्हीं महिलाओं से, तो हमने उनके साथ भी प्रोग्राम किया और हमने लाइफ स्किल के बारे में बताया। और जब हम ये प्रोग्राम जब कर रहे थे बच्चों के साथ तो हमें बड़ा मतलब हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया था वही उनकी भी सोच थी, उनकी धारणाएं थी, तो लेकिन उनकी सोच चेंज हो रही थी, क्योंकि जिस दौर से हम गुजरे हैं उस दौर से ही बच्चे नहीं गुजरेंगे। इसी तरीके से लड़कों की डिमांड आई कि आप लड़कों के साथ भी करिए, तो उसमें एक समस्या हमें ये आई कि उनके फादर से हमें बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, और हम आदमियों से इतना बात नहीं करते। लेकिन हमने कहा कोई नहीं, हम बात करेंगे। एक हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और उसके अंदर पेरेंट्स को बुलाया, माँ को तो बुलाया लेकिन फादर को स्पेशली बुलाकर लेकर आए बच्चों को। हमने अपना पूरा एडोलसेंस का मॉड्यूल समझाया, क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या हम बात करेंगे उनसे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये लग रहा था मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या करेंगी, कहाँ ले जाएंगी, खराब कर देंगी, टाइम खराब करेंगे, मेरे बच्चों को बिगाड़ देंगी। तो ये चीजें उन्हें अच्छी लगी मीटिंग में आके, तो उन्हें काफी अच्छा लगा और वो बदलाव उन्हें देखने को मिलता है हमारे बच्चों में भी और जेंट्स में भी। जितने प्यार से और जितने अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि आप जिस ढंग से आप काम कर रही हैं वो बिल्कुल आपके उत्साह के अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा खान टीम को। तो साथियों आप सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका किसी भी हमारे स्पीकर से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या जिज्ञासा है, आप प्लीज उसे चैट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर आप अपनी बात कहने के लिए कहना चाहते हैं तो प्लीज एक एक करके अपने आप को आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। महावारी स्वास्थ्य भारत दर्शन कार्यक्रम का हमारा मकसद भी यही है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी महावारी प्रबंधन को लेकर प्रैक्टिसेस हो रही है उसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उसको हम सभी समझ पाएं और अपनी क्षमता को बढ़ा पाएं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी अगर आपका समस्या, जिज्ञासा, प्रश्न है तो प्लीज आप उसे हमारे साथ साझा जरूर करें। मैं सिर्फ उगेर का आपको छोटा सा परिचय दे दूं। उगेर केवल पैड्स नहीं बनाती बल्कि बहुत अलग अलग कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई है। हम विशेष तौर पर महावारी स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम प्रशिक्षण देते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक शामिल है। हमारा मकसद है कि इसके ऊपर जो महावारी पर जो चुप्पी है, प्रजनन स्वास्थ्य पर जो चुप्पी है, उसे तोड़ा जाए। हम खास तौर से काम कर रहे हैं पुरुषों को महावारी प्रबंधन, महावारी स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए। मैन इन मेंस्ट्रुएशन पूरा प्रोग्राम ही हमारा इसी कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। उगेर पैड्स बनाने के साथ साथ इसे कॉपी लेफ्ट प्रोडक्ट की भी संज्ञा देता है। इससे हमारा मतलब है कि हम उगेर पैड्स आप जहां चाहें जैसे चाहें बना सकते हैं, सिर्फ हमें क्रेडिट देने की जरूरत है, आप उसे बनाकर बेच भी सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हम बहुत सारा रिसोर्स और ट्रेनिंग मटेरियल भी डिजाइन करते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, मैं सीधा स्मृति जी और लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जुड़ें और जो भी प्रश्न हमारे साथ हमारे आज के लिसनर्स पूछ रहे हैं उनका समाधान करें। स्मृति जी। हमारा सवाल सुखी भव की टीम के लिए है। हाँ मैम बताइए। हाँ, सवाल ये है कि किस किस्म की जानकारी हेल्पलाइन पे दी जाती है? हेलो सखी की जो हेल्पलाइन है उसमें कैसी जानकारी दी जाती है, प्लीज बताइए। तो हमारे हेलो सहेली हेल्पलाइन में छोटे बच्चे जब वो मेच्योर होते हैं तब से लेके पीरियड स्टॉप होता है तब तक हम जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि सडनली अगर मेच्योर हुआ तो उनमें से क्या क्या चेंजेस होता है, उस टाइम पे घबराना नहीं चाहिए, माँ के साथ कैसे बात करना चाहिए और माँ कैसे उनको सपोर्ट करना चाहिए, उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होता है, उस टाइम पे क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में, और प्रेगनेंसी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। थैंक यू टीम, आई होप आपको जवाब मिल गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि लड़कियों को आमतौर पे बहुत कम दिनों तक माहवारी आती है, 3 से 4 दिन या कभी-कभी 8 दिन, तो उनमें खून की कमी भी नहीं है, इसका क्या रीजन है?
तो स्टार्टिंग जब वो मेच्योर होते हैं तो वो पूरा सेटल होने के लिए 1 ईयर तो लगेगा। तो उस टाइम पे एक बार महीने में 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार ऐसा हो सकते हैं, लेकिन वो 1 ईयर तक ऐसा प्रोसेस होता रहता है। लेकिन 1 ईयर होने के बाद वो कंटिन्यू मंथली वो होते हैं। तो उस टाइम पे भी वो ज्यादा खाना चाहिए, पानी पीने चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। तो ये प्रोसेस स्टार्टिंग जब मेच्योर होते हैं तो इरेगुलर पीरियड का चांसेस होता रहता है। और 3 से लेके 7 दिन तक पीरियड होना वो नॉर्मल है। अगर 8 या 9 दिन तक भी उनको ब्लीडिंग जा रहा है लेकिन उनको सुस्त नहीं हुआ तो वो भी नॉर्मल है। अगर उनको ज्यादा सुस्त हो रहा है, उठने के लिए नहीं हुआ, तो एक बार जाके हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं। लेकिन वो 3 से लेके 7 दिन तक पीरियड होना नॉर्मल है। तो थैंक यू। एक और सवाल हेलो सहेली हेल्पलाइन के लिए ही है कि आपका समय क्या है, किस वक्त कॉल किया जाता है, हेल्पलाइन कब एक्टिव रहती है? सॉरी मैम, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, ब्रेक हो रहा है वॉइस। हाँ, एक सवाल आपके लिए और है कि हेलो सहेली के टाइमिंग्स क्या है, किस वक्त कॉल किया जाता है, बता सकता है एक्टिव टाइम? सो हमारा हेलो सहेली का टाइमिंग है सैटरडे संडे भी हम वर्क कर रहे हैं मैम, टू 7 o'clock। ओके, थैंक यू। और किसी स्पीकर के लिए कोई सवाल या कोई भी सवाल किसी का हो? एक सवाल आया है कि ट्रेनिंग के अंदर जो मिथ्स एंड टैबूज होते हैं ना, जैसे छुआछूत, छूना नहीं है, किसी चीज को जाना नहीं है, तो उसको आप कैसे अपनी ट्रेनिंग में कैसे बताते हो महिलाओं को या लड़कियों को ट्रेनिंग के दौरान? तो हम लोग उनको समझाते हैं कि ये तो एक मान लीजिए नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ अगर हम लोग अचार छू देते हैं या फिर हम लोग अगर किचन पे जाके बना देंगे, वो वैसा कुछ एक हैम्पर नहीं करेगा। क्योंकि आज मान लीजिए आज अगर मैं घर पे अकेली हूँ तो मेरे पापा को अगर मुझे खाना खिलाना और उनको मान लीजिए उनका तबीयत खराब है तो डेफिनेटली मुझे घर का खाना बनाना पड़ेगा, घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज नहीं रहते हैं ज्यादातर। तो हम लोग अगर स्मॉल फैमिलीज में रहते हैं तो हम लोग को डेफिनेटली उनको काम करना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। अगर खाना नहीं खाए, अगर मैं अकेली भी रही तो नहीं अगर मेरा मेंस हो रहा है और फिर खाना बनाने का टाइम अगर मैंने बोला है कि नहीं बनाना है तो वो तो मेरा बॉडी पे प्रॉब्लम देगा। तो उन लोगों को हम लोग समझाते हैं कि अगर आप लोग करना चाहते हो तो करो। मतलब हम लोग उनको समझाते हैं कि लॉजिक क्या है, यहाँ पे मीथ वगैरह क्या है, ये सब लॉजिक हम लोग उसके मतलब पहले तो बनाया नहीं। उन लोगों को पहले जो हम लोग एक माना जाता था कि एक रूम पे रखा जाता था, पहले का रीजन क्या है और अभी लॉजिक क्या है, तो वो सब हम लोग उनको बता दें। फिर उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग माने या ना माने, वो लोग जैसे करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे उन लोग को अवेयर करते हैं। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ मैम, मैं भी कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। सुखी बाबा टीम से भोपाल से हूँ। करिए रेवती जी, बिल्कुल बोलिए जी। मैं रेवती खांडेकर भोपाल से जी। जी बोलिए मैम। सुखी भवा संस्था के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है और हमने अपने बस्ती में भी देखा है बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे जो घरें हैं जिसमें बहुत ही छुआछूत या धारणाएं मान्यताएं पाल के रखे हुए थे, जो हमारे पूर्वजों ने चलाते आ रहे हैं। उस धारणाएं को हम मानते आ रहे थे। वो धारणाएं जो सुखी भवा के माध्यम से हमें ट्रेनिंग दिए गए हैं उसके माध्यम से बहुत कम हुआ है। जैसे कि मंदिर नहीं जाना, अभी भी हम बोलते हैं, अपने बच्चे को हम बोलते हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चे को बोलेंगे, इस तरीके से धारणाएं एक आ रही है। तो जैसे कि मंदिर नहीं जाना, तो सुखी भवा की टीम ने हमें एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया है। जब हमें समझ में आया कि मंदिर नहीं जाना, पहले के जमाना में क्या होते थे, मंदिर मस्जिद बहुत दूर पे या पहाड़ों पे इस तरीके से हुआ करते थे। लेकिन और क्या होता है, पीरियड के उसमें हमें एक वो होता है, PMS होता है, महामारी जब
होती है तो हमें दर्द होती है कमर में, पेडू में, और हमें कभी कभी सुस्त या कमजोरी महसूस होती है। तो क्या हम इस स्थिति में हम वहां मंदिर तक चल के जा पाएंगे? उस समय में क्या होता था, साधन आवागमन की साधन की कमी थी, हमारे पास आवागमन की साधन नहीं थी, बैलगाड़ी से आना जाना होते थे, पैदल आना जाना होते थे, मंदिर पहाड़ी पर है। तो क्या एक महामारी से जो महिला है वो क्या वहां तक पैदल जा सकती है? नहीं जा सकती। पानी की सुविधा थी उस समय? नहीं थी। लेकिन अभी की इससे देखा जाए तो क्या है, हर चीज की सुविधा है, आवागमन के भी साधन है, स्वच्छता को लेकर भी सोचा जाए तो पानी का भी साधन है, हर चीज का साधन है। तो अगर हम अभी के उससे देखा जाए तो हम 10 मिनट में भी मंदिर से जाके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन है। पहले की स्थिति में क्या थी, हमारे पास साधन नहीं थी, लोगों को पैदल जाना पड़ता था। इस तरीके से हम महिलाओं को समझाया जाता, तब हमें समझ में आती है कि आखिर ये धारणाएं क्या हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, उसी धारणाएं पे हम चल रहे हैं। इस प्रकार की और जो सुखी भाव के माध्यम से हमने सीखा है, जैसे कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को जब उन्होंने हमें बताया, हमारे सामने रखा गया, तो हमें बहुत हंसी आती थी, बहुत ज्यादा हमें शर्म आती थी। हमें आपको रोकना होगा। आपने एक जरूरी बात कही है, लेकिन हमें आपको रोकना होगा क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि हो सकता है पहले जो चीज किसी कारण से शुरू हुई उसको आज हमने एक भ्रांति बना दिया है और उसको अंधविश्वास की तरह उसका पालन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। हमारे पास नागालैंड टीम के लिए एक सवाल और है। नागालैंड टीम के लिए एक सवाल आया है। क्रिस्टीना, क्या आप हैं? क्रिस्टीना, आर यू हियर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, क्रिस्टीना। Kudi, are you there? Would you like to take this question? Yes, Kudi. Kudi, the question for Nagaland team is that we've heard from the speaker that there are less myths and taboos followed in Nagaland compared to other parts of India. So what are the challenges that you are facing when you're doing your intervention? By sharing and educator that will come out with a positive vibe, and then we will help them out to think positive, and then not to get fear. And if the demonstration things happen with them, then they shouldn't fear, they shouldn't shy, and then they should not be like self-consciousness, so that we can, by through awareness program, we can educate them, and then we can bring out of fear. I mean, like, we can bring them out of fear so that they can stand on their feet, and then they can spread the awareness against demonstrations towards another people like who are fear. And also with the sanitary cloth pad we are producing, we got lots of like positive feedback that saying that the one who stops, like who is not flowing regularly, they started to flow regularly. And the one who's who got pains while menstruating, like during their menstruation cycle, they happen to be like more relief. I should say, like, by spreading the good news of this sanitary cloth pad, which we have been trained from EcoFam, I should say, like, people will come to know and use that cloth pad so that they won't harm themselves, or say, like, there won't be any harmful in their life in their futures, in their days to come. Maybe there are areas where myths and taboos are less. हो सकता है ऐसी जगह हो जहाँ पे भ्रांतियां कम हो, लेकिन फिर भी माहवारी स्वास्थ्य पे जानकारी, still the information about related to menstrual health, knowing more, is still less. तो वो जानकारी देनी बहुत जरूरी है, अगर भ्रांतियां कम हैं तो भी. Thank you team Nagaland for answering that question.
I do not see any other questions that have come up, so I think we will invite. I will invite Lakshmi Mood. Hello again to everyone. We are nearing the end of today's webinar, episode 2, and I think it has gone well. Of course, there are lots of technical glitches. Somebody just messaged me on the phone saying we can't hear, voice is breaking. I think this is part of this whole business of getting people together online. COVID with all its problems has at least brought us all together, so many people together in one platform even a few months ago. So we have taken you through a Bharat Darshan today. We started with ourselves in Udaipur. The Udaipur team probably hasn't slept last night, getting everything together. And still we had some glitches, which we hope to sort out for episode 3. We began this morning from South India. We went to Bangalore, we went to Bhopal, and from there we jumped to Bokaghat. And from Bokaghat, we jumped to Jalukhi. And we took a U-turn and went to Railmagra. And then Gogunda. Gogunda was in Rajasthan. And then we went up north again to the Nizamuddin Basti. So I'm really happy that we've had a great Bharat Darshan. And once again, I'm like amazed that this has been possible because of video conferencing and, you know, all the things that technology gives us today. So summarizing the many things that all the speakers have said, we've looked at all the superstitions, we've looked at, you know, all the taboos, we've looked at restrictions. They obviously are across the country. And also we've seen that critical thinking, scientific understanding, reinforcing thinking, trainings, workshop, practical applications, it's a combination of all these things. And of course, conversation is very important. Conversation, talking, shouting even if it requires to be done. And conversations not just amongst women, amongst menstruators, young people, conversations with men, with young boys. I think it's time to really start that in a really, really big way. When I look back in these 25 years and I look at what has happened in the menstruation space, I can see the change, and yet I feel sometimes, you know, we are so many steps backwards. So I think social change is all about going forward and backwards, and it's great if we can keep going forward. So I will, without any delay, I will now ask Smriti to summarize what I've just said in Hindi for other speakers. Smriti, over to you. Thank you, Lakshmi. लक्ष्मी जी ने कहा कि एक तो हम क्षमा चाहते हैं आज की जो टेक्निकल ग्लिचेस हुई हैं, जो गड़बड़े हुई हैं, लेकिन ये एक हिस्सा है बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी को यूज करने का। और साथ ही हम बहुत खुश हैं, आज जब हमने शुरुआत की, हमने दक्षिण भारत से करी, कर्नाटका से, बैंगलोर से, उसके बाद हम सीधा आपको मध्य प्रदेश ले गए, भोपाल, और फिर जो है हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले गए जहां हमने असम और मेघालय, असम और नागालैंड को कवर किया, फिर आपको राजस्थान ले आए और अंत में दिल्ली पहुंचा दिया। तो ये जो भारत दर्शन है, ये कमाल का दर्शन रहा, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हम सब ऑनलाइन आ गए। वास्तव में देखा जाए तो इतने बड़े दर्शन के लिए हमें बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है, और जो गड़बड़ें आज हुई, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम अपने तीसरे एपिसोड में सुधार पाएं। अगर हम आज के मुद्दों को देखें तो बहुत इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि जो भ्रांतियां हैं वो पूरे भारत में कई जगह एक जैसी हैं, कई जगह विभिन्न हैं, लेकिन हर जगह हैं। और महामारी के मुद्दे पे जो चुप्पी है वो भी हर जगह एक तरीके से है। तो हमने ये भी जाना कि सिर्फ पैड बेचना या सिर्फ ट्रेनिंग करना एक समाधान नहीं है, पर एक कॉम्बिनेशन है। हमें बात करनी होगी, हमें ट्रेनिंग करनी होगी, हमें पैड भी बनाना होगा, हमें पैड के बारे में जानकारी भी देनी होगी कि आपके सेहत और आपके पर्यावरण के लिए क्या अच्छा है। तो सब चीजें जब मिलकर आएंगी और जब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, तभी कोई आगे हमें सोल्यूशन इसका या आगे फ्यूचर में समाधान नजर आता है। तो इसी के साथ हम एपिसोड 3 के बारे में क्लोज करने से पहले आपको बताना चाहते हैं, हमारा जो तीसरा एपिसोड है वो भी
जमीनी आवाजों को लाने का है। हमारे पास जो स्टेट्स कंफर्म्ड हैं अभी, उनमें शामिल हैं उड़ीसा और गुजरात, जिनको अभी तक हम नहीं छू पाए हैं पिछले 2 एपिसोड्स में। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हैज़गीक पे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इंफॉर्मेशन और लिंक मिल ही जाएगी। जो नहीं जुड़े हैं वो जरूर हमसे जुड़े, हैज़गीक के ऊपर रजिस्टर करें। और ये जो पूरा सत्र है ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और I think it is good to wrap. ओम, मैं बस फाइनल बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आप सबका शुक्रिया जो हमारे साथ पूरे समय जुड़े रहे हैं। मैं विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं हैज़गीक टीम का, जिन्होंने जतन की टीम और उगेर की टीम के साथ मिलकर हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया। राजसी, कविता, अंबिका, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारी सभी टीमें जो हमारे साथ, सारे स्पीकर्स जो आज हमारे साथ जुड़े रहे, इको हब से लेके CRBFC से लेकर सुखी भावा, निजामुद्दीन बस्ती की हमारे साथी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शनिवार 10 अक्टूबर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।